जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी दिव्य चेतनाएं, जिन्हें आदि शक्ति ने सशरीर पुनर्जन्म दिया, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जिनके चक्र शुद्ध है, जिन चक्रों पे पावित्र्य है, देवी देवता विराजते हैं, जिनकी आत्मा जागृत है, जिनकी मां कुंडलिनी और जिनकी आत्मा इस शरीर के बाहर कहीं भी विचरण करती है, सुषुप्ति में, जागृति में, चेतन में, अचेतन में, ब्रह्मांड के किसी भी छोर पे जिनकी मां कुंडलिनी विचरण करते हैं, सत्य का उद्घाटन करते हैं, जिनकी आत्मा उन्हें सत्य और असत्य का ज्ञान देती है, जिनका चित्त आलोकित है और जिसके दृष्टिपात होते ही लोगों की कुंडलिनियां जागृत हो जाती है। ऐसी सुंदर, दिव्य, पावन चेतनाओं को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम विगत कई मासों से माँ की कृपा में ध्यान करते हैं, चित्त को चैतन्य में लीन करते हैं, आकाश तत्व में प्रवेश करके हम पंच तत्वों को चैतन्यित करके नकारात्मकताओं पे कार्य करते हैं, माँ का वो यंत्र बनते हैं जिसके लिए माँ ने इतना परिश्रम किया। न कि सिर्फ ज्ञान, गूढ़ रहस्य इस ब्रह्मांड का, इस मानव देह का हमें प्रदान किया, अपितु अनुभव भी दिया, जिससे ये सिद्ध हो गया कि श्री सदाशिव और श्री आदि शक्ति ही सृष्टि के सृजनहार है, जिससे ये सिद्ध हो गया कि हमारी आत्मा श्री सदाशिव का प्रतिबिंब है और इसमें वो सभी गुण शक्तियां हैं जो श्री सदाशिव ने
अपने ही मूर्त स्वरूप हमें बनाया और प्रदान किया। माँ कुंडलिनी हमारे रक्षण के लिए सदैव जागृत रहती है। इस उन्नत अवस्था में हमसे जो कार्य परमात्मा और परमेश्वरी लेना चाहते हैं, उसके लिए हम निरंतर अपने आत्म साक्षात्कार को सफल बनाने के लिए परमात्मा का यंत्र बनने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। हमारे चित्त से आत्म साक्षात्कार होता है। हमारे चित्त से नकारात्मकताओं का नाश होता है। तो आइए चलिए आज एक बार फिर से परमेश्वरी की अनुकंपा में यह कार्य करें। सबसे पहले अमृत वाणी सुने और जाने कि आज का क्या संदेश है परमेश्वरी का हमारे लिए। जय श्री माता जी। Vibrations, as I said, that is the manifestation of the spirit. It is a very vague way of expressing. Now, see, there's a nice flame before me. This candle has been lit. Now, what does it mean? It gives you light. Alright. How does it mean? By throwing light, by emitting light. It is the emitting of pulsation from the cell. This light, actually there is sound, there is light, very high frequency sounds, many types of sound harmonics. There is magnetism. It has all the 5 elements, the subtle of all the 5 elements inside this. They are talking, they are telling you, they are guiding you, they are helping you. It's because the spirit is working. Like this light you take in your hand, in the darkness, and you see that there is impediment between. So you get the idea with this light. The light is doing that. So when the spirit pulsates in your conscious mind, then it is a self-realized person. But in the unconscious, it is there all the time. But actually, the spirit itself comes out. It's as big as your thumb is. You contain your thumb in your heart. That is the reflection of God Almighty within us. Because the heart sees that image of itself, it is pulsating, and is emitting the knowledge through our unconscious. Spirit is an unconscious being till we are realized. Once we are realized, it becomes conscious. It starts emitting itself. What is spirit? Is God.
in a miniature form, which is different. The more we clean our heart, which represents all the 7 chakras. There are 7 auras around our heart. All the 7 chakras which are here in the Sahasrara, the same are there, and all the 7 chakras are in us. 7 auras around the heart. And when all of them are clear, absolutely clear, pure, integrated, then complete emission starts of those vibrations. They are much more than I can explain, because, say, the other day, I mean, and first half of the letter is like that. I would say it's all right, but it's all for me. So in the same letter, which is I'm such a fool to write all this, but I must write to give you write the night and the day of my life. So she wrote to me. So it can work like that. So the vibrations actually are the things which are the doers and the enjoyers. They are the ones who enjoy it. Find a very good self-realized soul coming. And you just feel the self-realized soul and you say, oh, very good. Come along, just have it. Come along, just have it. Starts enjoying that joy that's coming from that person. And that is what it is. That joy. For example, the G dies, all right, and you change it over and make a nice seat for me to sit down. All right. So can you sprout even a small seat? But these conditions connected with our family, which are part of our radio. Almighty's eyes, you can say, they are the ones who look after each and every here and how you see the softness on your hands. Because they have universal emission centers and they have casting stations, they have universal TV centers, they have everything with them. In short, just copy them and you think something that you really do, anything whatsoever. That's why it said that Brahma, this is the expression of Brahma, is the only, the rest is all this, that is all
Maya is just an illusion. We live in illusions. He is the enjoyer, he is the doer. You are just in illusion. See, it would be like this Mike thinking that he's giving the lecture on surgery. It's really like that. So, to explain what is conditions may not be so simple, not these details, but the overall idea. Alright. जय श्रीपति जी। आशा है हम सभी ने माँ की समृद्ध वाणी को समझा होगा, क्योंकि हमने इसे महसूस भी किया है। माँ ने बताया कि जो वाइब्रेशंस है ये ईश्वर की शक्तियां हैं और ये हमारे आत्मा से रिसीव होती हैं, और जब हम ये रिसीव करने लगते हैं, ये परमात्मा के मिनिएचर स्वरूप है। सदाशिव की समस्त शक्तियां इनके अंदर बहती हैं और यही सारे कार्य करते हैं। इसीलिए जब हमें कोई भी समस्या होती है तो यही वाइब्रेशंस, जैसे एक बहुत बड़ा कोई सैटेलाइट कार्य करता है, एमिट करता है, रिसीव करता है, उसी तरह से ये कम्युनिकेट करती हैं डिवाइन को हमारी समस्याएं, हमारी भावनाएं, और तत्क्षण डिवाइन उसको वर्कआउट कर देते हैं। देवी देवता उसको उस कार्य को कर देते हैं। ये जो हमारे हाथों में वाइब्रेशंस बहती हैं, ये बहुत ही महान चीज है और यही सारे कार्य करते हैं। तो भगवान ही सारे कार्य करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। हम तो एक बीज को भी अंकुरित नहीं कर सकते। और ये वाइब्रेशंस मल्टी डायमेंशनल है, जैसे कि ईश्वर मल्टी डायमेंशनल है। मतलब कि जैसे हम मनुष्य सिर्फ 3 डायमेंशंस में जीते हैं और तुर्य स्थिति के बाद, आज्ञा चक्र को पार करने के बाद हम 4th डायमेंशन को फील कर पाते हैं। लेकिन डायमेंशंस तो असंख्य हैं और इतने ही असंख्य रूपों से, स्वरूपों से, तरीकों से ईश्वर हमारी मदद करते हैं जब हमारे अंदर ये वाइब्रेशंस बहने लगते हैं, क्योंकि ईश्वर की ही शक्तियां हैं। और हम भी, जब हमारी आत्मा पूरी तरह से जागृत हो जाती है, जिसकी वजह से हम इनको अपने हाथों में महसूस कर पाते हैं, क्योंकि आत्मा का एक स्वरूप है। ये एक अंगूठे के जैसी आकृति है हमारे बाएं हृदय के अंदर, और इसी की जागृति से हम इन वाइब्रेशंस को फील कर पाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा
श्री सदाशिव को प्रतिबिंबित करती है और यही हमें सारी नॉलेज देती है। हम कोई भी प्रश्न अपनी आत्मा से पूछते हैं, हृदय में नत होके एकदम अंदर गहन जाके, तो उसका उत्तर हमें वाइब्रेशंस के रूप में मिलता है। ये हम सभी जानते हैं और इसको हम अनुभव भी करते हैं। तो चलिए इन वाइब्रेशंस का, परम चैतन्य का आनंद लें। और जैसा हम जानते ही हैं, आजकल श्री गणेश जी के विशेष दिन चल रहे हैं और वाइब्रेशंस, परम चैतन्य हर कण के भीतर श्री गणेश जी हैं, उन्हीं से ये आलोकित है। ईश्वर की चराचर में फैली हुई इन शक्तियों से एकाकारिता के लिए हम अब ध्यान करेंगे। एकदम शांत हो जाएंगे, मानसिक और शारीरिक रूप से एकदम स्थिर हो जाए। कोई भी आगे या पीछे का विचार नहीं, कोई भी अच्छा या बुरा विचार नहीं। पूरा चित्त अपने मध्य हृदय में ले आएंगे, माँ जगदम्बा के दरबार में। हृदय स्वच्छ होने से ही ईश्वर की शक्तियां हमारे अंदर से बहती है। सर्वप्रथम माँ जगदम्बा को नमन करेंगे। हमारे मध्य हृदय में सभी देवी देवता, सातों चक्रों की आभा यहीं उपस्थित है। पूरा ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र यहीं उपस्थित है और सृष्टि के कण कण में व्याप्त श्री गणेश जी माँ अम्बे के, जगदम्बे के प्रथम सृजन है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, इनकी आराधना करने से, इनको ध्यान से हमारे सब चक्र पवित्र हो जाते हैं। श्री गणेश जी पवित्र है। श्री गणेश जी मेरी आत्मा में स्थित है। श्री गणेश जी परम चैतन्य में हर कण में आलोकित है। श्री गणेश जी मेरे मूलाधार चक्र से लेकर स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, आत्मा, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और ऊपर के अनेक चक्रों में श्री गणेश जी ही विद्यमान है। हे प्रभु गणेश, मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्न करें। हे विघ्न हरता गणेश जागृत हो जाए, जागृत हो जाए, जागृत हो जाए। श्री गणेश जी मेरी ब्रह्म नाड़ी में
महसूस करेंगे रीढ़ की हड्डी के अंदर 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 ब्रह्मनाड़ी और उस पे स्थित सारे चक्र और चक्र पेशी गणेश जी महसूस करेंगे। बहुत सुंदर। धीरे से अपने चित्त को बाएं हृदय में लाएंगे, एकदम अंदर उतर जाएंगे, अपनी आत्मा को ढूंढेंगे, स्पर्श करेंगे, स्पर्श करेंगे आत्मा को। श्री माता जी, आपकी कृपा से एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे आत्मबोध प्रदान करें। माँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, सदा शिव का प्रतिबिंब हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। सच्चिदानंद हूँ मैं। धीरे से चित्त को दाएं हृदय में भी लाएंगे, महसूस करेंगे कि यह चक्र पूरी तरह से जागृत है। श्री विष्णु जी के इस अवतरण मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नमन करेंगे, माँ सीता को नमन करेंगे, हमारे दाएं हृदय में माँ, मुझे अपनी सभी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे, तीनों हृदय की ऊर्जा के साथ माँ जगदम्बा की समस्त शक्ति के साथ विघ्न हरता गणेश की कृपा के साथ देवी देवताओं की ऊर्जा के साथ विशुद्धि चक्र में आएंगे। श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे, विराट विराटांगना को नमन, आज्ञा चक्र पे आएंगे। श्री जीसस क्राइस्ट, श्री गणेश जी का ही अवतार पवित्र चहुओर नमन करेंगे। क्षमा की शक्ति को महसूस करेंगे।
आज्ञा चक्र के खुलने से शांति का अनुभव। धन्यवाद है प्रभु। मैं काव्य पे आई श्री महागणेश पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त श्री महागणेश मुझे पाप मुक्त करे, मेरे पूर्वजों को पाप मुक्त करे, जागृत हो जाए पूरा चित्त बैक आज्ञा के अंदर, पूरा चित्त नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे, महसूस करते रहेंगे इस चक्र को। सहस्त्रार पे आएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों को नमन करेंगे। किस प्रकार से माँ गंगा सदाशिव की जटाओं से आके यहाँ माँ के चरण पखारे, श्री चरणों से निरंतर परम चैतन्य बह रहा है, पूरे शरीर के अंदर, सर के अंदर, रीढ़ की हड्डी में, पूरी तरह से पूरी पीठ, फ्रंट, इंटरनल ऑर्गन्स, pelvic region, legs, knees, calves, feet, पूरा शरीर, shoulders, arms, hands, पूरा शरीर परम चैतन्य में भरा हुआ, परम चैतन्य में स्नान करते रहेंगे। श्री माता जी के श्री चरणों से बह रहा है, नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, माँ कृपा करें और हमारा योग श्री सदाशिव से करा दे। श्री माता जी हमें वो शक्तियाँ दें जिससे हम बहुआयामी हो सके, सृष्टि के कण कण में प्रवेश कर सके, उन्हें चैतन्य कर सके। माँ से आशीर्वाद लेंगे, चित्त को अर्थ बिंदु चक्र पे ले आएंगे, 3-4 इंच ऊपर, बहुत सुंदर
और ऊपर बिंदु चक्र, बहुत सुंदर, और ऊपर वलय चक्र, प्रदक्षिणा पे चलेंगे। महसूस करेंगे कि एक डोर है जो आकाश तक जा रही है। ऊपर चलते जाएंगे, आकाश तक पहुंच जाएंगे। आकाश में अपना चित्त फैला देंगे। आकाश से निरंतर परम चैतन्य बरस रहा है। निरंतर निरंतर माँ के श्री चरणों से बहता हुआ परम चैतन्य पूरे विश्व में गिर रहा है। हमारे चित्त के माध्यम से पूरे विश्व में परम चैतन्य फैलाएंगे। अमेरिका, चित्त में नक्शा रखेंगे विश्व का। पूरे अमेरिका में एक पेंटिंग ब्रश की तरह चित्त का प्रयोग करें नक्शे के ऊपर। पूरा अफ्रीका, पूरा यूरोप, पूरा एशिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा विश्व परम चैतन्य से सराबोर हो रहा है, भीग रहा है। परम चैतन्य बरस रहा है चारों तरफ। अपने चित्त को पृथ्वी तत्व पे ले जाएंगे। जहां जहां भी थल है, स्थल है, पूरे पृथ्वी पे, धरती पे परमेट कर जाएंगे। जहां जहां भी कोई भी नकारात्मकता है उसका नाश हो रहा है पूरी तरह से। खात्मा हमारे चित्त के माध्यम से परम चैतन्य से भरे इस चित्त को पूरी पृथ्वी पे डालेंगे। जल तत्व पे डालेंगे आप। महासागर, सागर, नदियां, झीलें, झरने, जल तत्व स्वच्छ कर रहा है। जल तत्व हर दिव्य आत्मा को नकारात्मकताओं का नाश हो रहा है। कोविड-19 पूरी तरह से खत्म हो रहा है। चित्त को वायु तत्व पे ले जाएंगे। पूरे वातावरण में व्याप्त वायु पूरे विश्व में परमेट कर जाएंगे। अपने चित्त को अग्नि तत्व पे ले जाएंगे। एकाकारिता पूरी तरह। अब सारी नकारात्मकताएं इसमें डाल देंगे। स्वाहा। स्वाहा।
कोविड-19 पूरी तरह स्वाहा हो गया। हर तरह की समाज की समस्याएं भी स्वाहा। अपने चित्त को आकाश में ले जाए, मेहदन करेंगे आकाश का, अंतरिक्ष में आ जाए। ग्रह मंगल ग्रह, श्री गणेश जी को नमन। बुध ग्रह, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन। बृहस्पति ग्रह, श्री विष्णु लक्ष्मी जी और धर्म के स्थापक आदि गुरु दत्तात्रेय को नमन। शुक्र ग्रह, प्रेम करुणा माँ जगदम्बा को। शनि ग्रह, श्री राधा कृष्ण को। दुष्टों के संहारक, धर्म की रक्षा करने श्री कृष्ण जी को नमन। सूर्य देव, जल जीवन, मनुष्य प्राणियों को पूरी तरह से जीवन देने वाले सभी ग्रहों को अनुशासन में रखने वाले सूर्य देवता को नमन। नकारात्मकताओं का नाश करने वाले सूर्य देवता को नमन। चंद्रमा, सूर्य के ताप से, अत्यधिक गर्मी से, शीतलता के द्वारा हमको शांत करने वाले, संतुलन बनाने वाले सहस्त्रार में अपना प्रभाव रखने वाले सब चक्रों को प्रभावित करने वाले चंद्रमा देवता को समय पर मेट कर जाएंगे सभी ग्रहों में, नक्षत्रों में, आकाश गांव में। सुंदर अंतरिक्ष के परे चलेंगे, भेदन कर देंगे अपने चित्त से, शून्य सरोवर में आ जाएंगे। न पंचतत्व, न ग्रह नक्षत्र, न आकाश गंगा, सब कुछ शून्य स्थिर। पूर्ण शांति, बहुत सारा प्रकाश। श्री सदाशिव के दर्शन करेंगे, श्री चरणों में सर रखते हुए प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। किसी भी जीवन में जाने अनजाने मेरे मन वचन कर्म से, पंच इंद्रियों से कोई भी अपराध हो,
आपके खिलाफ, तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु। हे प्रभु, मुझे योग प्रदान करें, अपने हृदय में समा। पूरी तरह से श्री सदाशिव के अंदर, पूरी तरह से डिटैच होने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्री चरणों में सिर रखते हुए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, हे महादेव शिव शंभु, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे अपने दर्शन दिए, आपने मुझे अपना सामीप्य दिया, तादाद में का अनुभव कराया। आपको कोटि 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 धन्यवाद। श्री आदि शक्ति को पृथ्वी पे भेजा, मेरा आत्म साक्षात्कार दिया, मुझे शुद्ध आत्मा बना। हम आपके अनंत कोटि ऋणी हैं। हे प्रभु, मुझे सदैव अपने हृदय में रखें। आप मेरे हृदय में सदैव जागृत, अपनी समस्त शक्तियों के साथ दया, प्रेम, क्षमा, करुणा, शांति, अपने गुण मुझे प्रदान करें। धन्यवाद करके धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे और आकाश से परम चैतन्य एक बार फिर से अपने चित्त से पूरे विश्व में फैला देंगे, बरसने देंगे। परम चैतन्य भीग रहा है पूरा विश्व, बरसने देंगे, भीगने देंगे। पूरा विश्व भीग रहा, पूरा विश्व भीग रहा। अपने देश में चित्त को रखें, अपने शहर, अपने घर में परम चैतन्य की वर्षा। जहाँ जहाँ हमारा चित्त जाता है
सब जगह ले जाएंगे अपने चित्त को, परम चैतन्य से भर देंगे। हर स्थान जहाँ हमारा चित्त जाता है या जहाँ हम जाते हैं, अपने परिवारजनों पे भी बरसा देंगे परम चैतन्य। उनके मध्य हृदय को सहस्त्रार से जोड़ देंगे। जैसे टाँका लगा देते, मध्य हृदय विशुद्धि आज्ञा सहस्त्रार जोड़ देंगे। सबका अपने चित्त को उन सभी लोगों पे डालेंगे जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है या जो हमें अपने चित्त में रखते हैं, सबके ऊपर सबका आत्म साक्षात्कार करते हैं। सबका आत्म साक्षात्कार परम चैतन्य से सबको नहला दे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। धीरे धीरे अपने चित्त को अपने सहस्त्रार पे लाएंगे, परमेश्वर के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के अनुभव के लिए, ध्यान के लिए, कल के कार्य का यंत्र बनाने के लिए। आपको कोटि कोटि नमन है माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। हम आपके अनंत कोटि ऋणी है माँ। धन्यवाद श्री माता जी। आज्ञा विशुद्धि से होते हुए मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में बैठ जाएंगे, नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे और विश्राम करेंगे। विश्राम करें। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करते हैं। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा जय श्री माता जी सभी को। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा। जय श्री माता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।